Okay, now we start with practice set 1.2. First question. Now here in this practice set, we are going to study, they have given us equation. We will have to find out the coordinates of the points, and then we have to find coordinates of both the lines, and then we will have to plot it on a graph. The point of intersection of the two lines will be the solution. Now what I am going to do is, I will draw two lines and then remaining I will only give the solution. I will find the coordinates for you in a table form. I will show the coordinates and I will ask you to, means two questions I will do, remaining questions you plot on a graph paper after two examples, okay? Solution I will provide, and it's not difficult. We have been drawing, or you have been plotting graph earlier also, okay? Sure. Let's start with question number 1. Now please see, this question is like a activity. They have given you a table and you have to just fill the table and then plot a graph. So first of all, we write the equation. It is x plus y equal to 3. Now they have given us a table. And in the table, 3 rows, 1, 2 and 3, and there will be 4 columns. There are 4 columns. This is x, y, and these are coordinates of x and y. So see what they are given us. They are given us first value is 3. You are asked to find, and they are given us here 3, 0. Now you know this is 0, but actually we will prove it. In the next line, next column, they are given us 5. They ask you to find this, and naturally coordinates 2. Third, they are given us again 3. They ask you to find x coordinate, and once you get x coordinate, you get the coordinates of x and y. So let us start. If x equal to 3, then put this in equation. Value of x you put in this equation. Therefore we get 3 plus y equal to 3. Therefore y equal to 3 minus 3. Therefore y equal to 0. You can see coordinates are given to you. Now if y equal to 5, then now if y equal to 5, then what is the value of x? X plus y equal to 3. Therefore x plus 5 equal to 3. Put the value of y in this equation. You get x is equal to 3 minus 5. Therefore x is equal to minus 2. So these coordinates are minus 2 and 5. Now go for the last. If y equal to 3, then x plus y equal to 3. X plus, put the value of y equal to 3 in this equation. So it's equal to 3 minus 3. Therefore x equal to 0. So this is a coordinate, 0, comma. So now we will plot this, okay, on the graph paper. What you do is, you take a graph paper, and in a graph paper you can see there is a mat, green color mat. Mat means lines drawn, horizontal, vertically, green color of 1 millimeter. And then one line is, bold line is 1 centimeter apart.
Now take a vertical y-axis in the center and horizontal x-axis in the center, so that you get approximately, this is approximate center, this is 0, 0, remember. This is y, this is y dash. All the coordinates on the right hand side of x-axis, of 0 origin, on x-axis are positive, left hand side is negative. Above, on y-axis, above origin on y-axis are positive and below are negative. So please write those. So make 1 centimeter difference. Okay. Now what will be scale? Scale, write down right hand corner, y-axis and x-axis. 1 centimeter equal to 1 unit. Here also 1 cm is equal to 1 centimeter equal to 1 unit, and on x also is 1 centimeter equal to 1 unit. Now plot this. First is 3, 0. Achha, so this is 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. This positive 1, 2, 3, 4, 5, negative minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Now just plot. First is 3, 0. So it will be this point. Next is minus 2, 5. So x is minus 2 and y is 5. So it will be somewhere here. And next is 0, 3. Somewhere here. Again, I am telling you, I am not plotting as per the what you call क्या बोलते हैं proper scale. This is a rough figure. So please understand, when you draw, you get a proper figure. Now please join this line, passing through all the 3 points. This is 3, 0, 0, 3, minus 2, 5. Okay, now we go to this we have drawn. Now I am going to erase this and we go for next. This is how actually line is plotted. We go to second question. I will plot on the same graph or same for your understanding. So let's see if they intersect. If there are no intersections, okay. If they intersect, we'll get a solution. Now we go to question number 2. We will plot that question number 2 also here on the same graph. What is the second equation they are given us? See the second equation. Second equation is x minus y equal to 4. X minus y equal to 4. So again, now plot, draw a table, 3 rows, and we want 4 columns. So 1, 2, 3, 4. This is x coordinate, y coordinate, and this is x, y. Now see what they are given us. If y is 0, you have to find this. And actually you will find the blank here. Now next coordinate they are given us x, so you will have to find this too. The next is minus 4,
and 0, I think. 0 comma minus 4 already given to you. So let us start. If x is equal, if y equal to 0, if y equal to 0, then x minus y equal to x minus 0 equal to 4. Therefore, x is equal to 4. This is 4 and this will be 4 comma 0. This is our first coordinate. Now, if x is equal to minus 1, then x minus y equal to 4. Therefore, minus 1 minus y equal to 4. Therefore, minus y equal to 4 plus 1. Therefore, minus y equal to 5. Since, therefore, multiplying both sides by minus, we get y equal to minus 5. So, this coordinate is minus 1 comma minus 5. We will use the same graph and see and plot and see how it looks. Scale will be same. There is no change in entire this chapter. First chapter, scale will be same. Statistics में अलग है. ग्राफ में नहीं. X axis equal to 1 centimeter 1 unit, Y axis 1 centimeter 1 unit. यही है स्केल. चलो. अब प्लॉट करते हैं. पहला 4,0 है. तो X axis पे 4, Y axis पे 0, तो ये पहला पॉइंट हो गया. 4,0. दूसरा पॉइंट है -1 कॉमा -5. तो ये है -1 ये -1 और ये है माइनस, अच्छा 1 and somewhere here -5. हम इसको यहां लेते हैं कहीं. -1 कॉमा -5. और थर्ड पॉइंट है 0 कॉमा -4. यहां कुछ तो अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. ये ग्राफ ऐसा जाएगा समथिंग. ये ग्राफ इस तरह से ऐसा आएगा समथिंग. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके. एंड दिस इज x minus y, sorry, this is x minus y equal to 4 एंड उसके पहले का क्या है x plus y equal to. So this is your plotting of two graphs. अगर ये दो लाइन का solution अगर उन्हें पूछा, what is the solution of these two lines, then this is the solution. This is the point where they are intersecting. They are intersecting somewhere here. अभी हमें रफली किया है, लेकिन वो देखो कहाँ इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन अगर पूछा तो, यहाँ पूछा नहीं है, सिर्फ प्लॉट करने को हुआ, तो ये प्लॉट किया है मैंने. इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay, now we are at practice set 1.2. Question number 2, sub question 1. Let us write the question here. The question is x plus y x plus y equal to 6. This is the equation 1. Another equation is x minus y equal to 4. Okay, we have to represent this, we have to solve this equation, simultaneous equation, these two simultaneous equation, and represent them graphically. So when you draw these two lines on a graph, the point of intersection will be their solution. So let's start. I have told you, let me explain to you that I don't have a graph paper here, right? So I will be plotting, I will be showing you how to do it. I will be drawing a table, finding the coordinates,
and explain you how to draw, give you an idea. I will draw x-axis and y-axis. Take the origin and roughly I take the 1 centimeter and also draw roughly, plot the points and draw a line. But remember, this will not be a perfect line because it is an estimate, because this is not a graph paper. It's a whiteboard. You do it on a graph paper and you will get the solution. I will write a final solution to you. Okay, let us start. X plus y equal to 6 is the equation. So now we have to get the coordinates. You have to find the coordinates of x and y, and this is x comma y. Now you take 3 points will be sufficient. Some people take 4 points, but I suggest go for 3 points. 3 points will be enough. So I want simple points I take, so that calculation I won't spend time. I take 0. Okay, 0 is the one number. Other I take 2, and then I take 4, multiple of 4, multiple even number, that is. Now what you get, if x equal to 0, then we have to show this to the examiner. X plus y equal to 6, therefore 0 plus y equal to 6, therefore y equal to 6. So first point you get 1 comma 6. If x equal to 2, then x plus y equal to 6, therefore 2 plus y equal to 2 plus y equal to 6, therefore y equal to 4, because 6 minus 2 is 4, so this is 4, so it is 2 comma 4. Then go for 4. If x is equal to 4, if x is equal to 4, बड़ा number क्यों take small number 3, x equal to 3, take a small number. Then x plus y equal to 6, 3 plus y equal to 6, y equal to 3. Go for next line. X minus, I will plot here in fact. So I'll write here x minus y. I want space for plotting x and y axis, so I take here. Now if ये लेना हम लोग, अच्छा, so we have to थोड़ा ऊपर लेते हैं. X minus y equal to 4 now. So you have to take 3 points. X, y, x comma y. You can take on your own any 2 points. Okay, since this is 4, I'll take 1 here. Okay, I'll start with 1. Now what happen if I'll take 1, 2 and 3. Chalo. Why not 0? Somebody will say. Okay, you can start with 0. You can hear 0, 1 and 3. Yeah, or even be, yeah, odd. कैसे भी. Don't take more bigger number, and you have to manipulate. हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि when I take it on other side, the number should not go up. छोटा ही होना चाहिए, 5 या 6 के अंदर ही होना चाहिए. Don't go beyond 7. If x equal to 0, then x minus y equal to 4,
therefore 0 minus y equal to 4, therefore y equal to minus 4. तो 0 होगा तो ये -4 हो जाएगा, 0, -4. If x is equal to 1, then x minus y equal to 4, therefore 1 minus y equal to 4, 1 उस साइड जाएगा, minus y equal to 3, so y equal to -3. This is your -3. So 1, -3 हो गया. यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ नेगेटिव मिल रहे हैं. ओके, नाउ इफ x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ मैं, देन x माइनस वाई इक्वल टू 4, 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू -1. 3, -1. अब यहां हम लोग प्लॉट करेंगे. सपोज दिस इज योर ग्राफ पेपर. मैं रफली कर रहा हूं तो इमेजिन नहीं करना. दिस इज सपोज दिस इज योर ग्राफ पेपर. स्केल स्टैटिस्टिक्स में अलग होता है, बट ग्राफ में इज कांस्टेंट. फॉर एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट एंड फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. लिख दो. स्केल बहुत जरूरी, इसके मार्क्स होते हैं. एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. वाई एक्सिस 1 cm इक्वल टू 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट. एक्स एक्सिस सेम 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट वाई एक्सिस. अब ये 0 0 0 या तो कोई ओरिजिन है. अब टेक 1 सेंटीमीटर, 2 3, मैक्सिमम एक्स कितना है? एक्स इज 3 दोनों में. सो 1 2 3 4 काफी हो जाएंगे. और नेगेटिव में -4 तक है. सो ये 1 2 3 4. एक्चुअली एक्स है ही नहीं नेगेटिव, लेकिन मैं बता रहा हूं. अब वाई भी 4 और नीचे 4 बस. 1 2 3 4. वाई 6 तक है. ओके, वन टू थ्री फोर 5 6. ओके, और नीचे भी 1 2 3 4 5. चलो लेते हैं 1 2 3 4 5. ये होगा -1 -2 -3 -4. ये -1 -2 -3 -4 -5. This is 1 2 3 4 5 and 6. Okay, let us start plotting now. 0 and 6. If x-axis पे 0, y-axis पे 6, तो 0 ये हो गया पहला पॉइंट आपका, ये लाइन का. 2 and 4, ये 2 और ये 4, तो समवेयर यहां आएगा कुछ. मैं रफली कर रहा हूं. मैं देखो, आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर, सो ये ग्राफ पेपर नहीं है, तो इमेजिन करके ही कर रहा हूं थोड़ा सा. एंड 3, 3, तो ये 3 और ये 3 समवेयर हियर. तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा. अब दूसरा है 0, -4. 0, -4 यहां आएगा. सो ये पहला पॉइंट. 1, -3 1, -3, तो ये होगा कुछ दूसरा पॉइंट यहां समवेयर. 3, -1 ये 3 और यहां कुछ -1 यहां आसपास रहेगा. अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो अपना कोऑर्डिनेट आएगा, दिस पॉइंट, ये एक सम है. देखो ये मैं रफली कर रहा हूं, ये कहीं यहां आएगा. एक्चुअली इट विल बी 5, 1. सो इसका सोल्यूशन है equations is
x कॉमा वाई 5,1, ये आंसर है इसका। प्लॉट करके देखो। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज वाइल स्टडिंग ग्राफ पेपर, जब ग्राफ साइमल इक्वेशन सॉल्विंग ग्राफ कर रहे हो यूजिंग ग्राफिकल मेथड, अपने पास कीप ग्राफ पेपर विथ यू फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। x plus y equal to 5 and next is x minus y equal to 3. Solution. The way we have solved it earlier, first question, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है, सेम मेथड वी गोइंग टू फॉलो हियर। एक्स कोऑर्डिनेट्स अपने मर्जी से लो, सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, और वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब आप मर्जी से लेते हो तो थोड़ा इमेजिन करो, पहले डाल के देखो ओरली। यू शुड नॉट हैव नंबर्स विच आर वेरी बिग, तो प्लॉटिंग करने में ग्राफ पेपर में नहीं आएगा और टाइम वेस्ट भी होता है। ओके, बिग का मतलब डोंट गो बियॉन्ड 7, 6 काफी हो जाता है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर चाहिए तो 4 पॉइंट ले लो, लेकिन उतना टाइम लगेगा। देखो ये मैं यहाँ आई विल गो फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। देखो पॉजिटिव वैल्यूज क्यों, वाई आई विल टेक ऑल पॉजिटिव वैल्यूज और 0, आई विल टेल यू रीजन फॉर दैट। अगर मैं यहाँ नेगेटिव लेता हूँ, इफ आई टेक एक्स एज नेगेटिव, दिस विल बी -x। अब समझो मैंने 1 लिया, -1 या -1 ले लिया, तो उस साइड जाने के बाद वो +1 हो जाएगा। सो 5 + 1 6 होगा। मैंने बोला 6 ओके, लेकिन 2 लोगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, 3 लोगे तो 8 हो जाएगा। सो डोंट गो बियॉन्ड 6, अगर हो सके तो उससे भी कम लेके आओ। सो आई स्टार्ट विथ फर्स्ट 0 नहीं लेता हूं मैं, इट विल बी देन 0 लोगे तो भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर 0 लोगे तो 4th पॉइंट ले लो। इफ यू वांट टू गो स्टार्ट विथ 0 टेक 4th पॉइंट, बिकॉज वो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। मतलब 0, चलो 0। दूसरा है मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, 2, 1, 2 एंड 3। चलो इतना काफी। लेकिन इफ x इक्वल टू 0, देन आप जानते हो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, therefore y इक्वल टू 5। ये एग्जामिनर को दिखाना है आपको, सो यू हैव टू राइट इट। इफ x इज इक्वल टू 1, then x plus y equal to 5, 1 plus y equal to 5, 1 उस साइड चला गया, y equal to 4, so 1, 4। if x is equal to 2, then x plus y equal to 5, so 2 plus y equal to 5, y equal to 3। अब आप में से एक बच्चा बोल सकता है सर एक नेगेटिव वैल्यू देखो ना, 6 तो चलेगा, नेगेटिव वैल्यू तो आएगा, तो बस एक नेगेटिव लेते हैं, इसको हम लोग -1 लेते हैं। देन x प्लस वाई, लेकिन वो 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, देन ओनली वी टेक।
-1 प्लस वाई इक्वल टू 5, देखो वाई इक्वल टू 6। देखो ये 6 हो गया, 6 के ऊपर मत जाए तो -1 एंड 6। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको प्लॉट करना है। चार पॉइंट लेता हूं तो आई विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, तो एक इजी हो जाता है 0। अब देखो यहां -1 है। इफ आई टेक हियर 1, उस साइड जाएगा तो होगा 3 - 1 2, तो नेगेटिव आएगा, चलेगा। ओके, देन आई टेक हियर 2, 2 साइड जाएगा तो क्या होगा, वन है ना, उस साइड जाएगा तो होगा 2 और -2 हो जाएगा। बाद में रहता हूं मैं, ये एक नेगेटिव वैल्यू सर ले लो, चलो -1, कुछ नहीं फर्क पड़ता, -1 उस जगह तो हो जाएगा 4 -4। और ये मैंने क्वेश्चन तो बराबर कॉपी किया है ना, क्वेश्चन बराबर कॉपी किया। क्या बोला था मैं, 2। चलो यहां 2 लिया है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ x इज इक्वल टू 0, देन x माइनस वाई इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, therefore y equal to -3. If x is equal to 1, then x minus y equal to 3, 1 minus y equal to 3, minus y equal to 2, y equal to -2. If x is equal to -1, then x minus 1 equal to 3, substitute करो, therefore -1 minus y equal to 3, therefore -1 equal to 4, y equal to -4. If x equal to 2, then x minus y equal to 3, 2 minus y equal to 3, minus y equal to 1, so y equal to -1. चलो प्लॉट करते हैं इन लोगों, ये दोनों लाइंस को। तो एज मैं ये x एक्सिस ले रहा हूं, सॉरी ये y एक्सिस ले रहा हूं, ये आपका x एक्सिस है। मैंने आपको बोला था स्केल क्या है, फिक्स्ड। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, सेम। और देखो ये नेगेटिव और x में देखो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव ज्यादा दोनों के ऊपर नहीं है, तो हम लोग 3 तक लेते हैं, 1 2 3 4 काफी हो जाएगा। ये भी 1 2 3 4, और ये 5 है, y में +5 और -4 है, तो +5 मतलब 1 2 3 4 5 और -4 1 2 3 4 ना। ये मैंने रफली किया है, आपको ये लास्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं सिर्फ ये यहां से यहां तक करूंगा और बाद में सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको करना है ग्राफ प्रैक्टिस, क्योंकि ग्राफ का प्रैक्टिस ही होता है। सो 0 and 5
तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे, अच्छा पहले लिख लेता हूँ, ये 1 है, पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, ये नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव वैल्यूज 1 -2 -3 -4, ये पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5. रिमेंबर ऑन एक्स एक्सिस, ओरिजिन से राइट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव, ओरिजिन से above on the y-axis will be positive, origin से below on the y-axis will be negative. All this you have studied in 8 and 9. ये बहुत इजी है. तो पहले लेते हैं 0 and 5. तो 0 और 5 ये हो गया आपका पहला पॉइंट. 1 and 4, तो 1 और ये 4 हो गया आपका दूसरा पॉइंट. इसको लिखना पड़ेगा आपको ऐसे 0,5 1,4, okay, 2,3, 2,3 somewhere यहाँ 2,3 और -1,6, -1,6, अरे बाप रे, वाई एक्सिस पे ये है, तो यहाँ कहीं होगा कुछ समवेयर. हाँ, ये -1,6. अभी ये प्लॉटिंग करना हाँ प्लॉटिंग करना आ जाएगा. लाइन ऐसे हो जाएगा कुछ. लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस. एंड ये देखो 0 and 3, 0 and -3, 0 और x -3, तो यहाँ आएगा ये वाई एक्सिस पे -3 है. So this will be 0, -3. दूसरा पॉइंट 1, -2, 1 and -2, तो somewhere पॉइंट यहाँ आएगा 1, -2, तो -1, -4, तो somewhere यहाँ आएगा -1, -4 and 2, -1, so somewhere यहाँ आएगा 2, -1, 2, -. अभी इसको ज्वाइन करेंगे ना आप लोग. ये अभी रॉन्ग आया है ये रॉन्ग आया है. समवेयर ईयर 4 होगा. देखो ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ओके, समवेयर यहाँ आएगा ये जॉइंट. द पॉइंट विल ज्वाइन हियर, ओके, एंड दिस विल बी 4,1. ये आपका सॉल्यूशन होगा. सो ट्राई इट. Of given equation is x, y 4,1. ओके, ये रॉन्ग है, याद रखो. ये यहाँ आना चाहिए. ये मैंने रफली किया है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये फ्री हैंड ड्राइंग है, कोई मेजरमेंट नहीं है. आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो परफेक्टली करेंगे. थर्ड पे जाते हैं. नाउ आई विल बी नॉट बी ड्रॉइंग ग्राफ. मैं अभी ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, से आपको सॉल्यूशन बोल दूंगा. ग्राफ आप प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे एंड चेक इट. याद रखो, मैथ्स द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस. मैथ्स द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस. तो सिर्फ देखो मत, नोटबुक रखो, अपने साथ प्रैक्टिस करो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. x + y = 0. थर्ड, x + y = 0. और दूसरा क्या है अपना 2x - y = 9. अभी मैं ग्राफ प्लॉट नहीं करने जा रहा हूं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू प्लॉट ग्राफ.
x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, सो x comma y. मैंने कहा था इफ आई टेक 4 पॉइंट्स आई विल स्टार्ट विद 0. सो इफ x इज 0 y विल बी 0. देखो इफ दिस इज 1 x इज 1 उस सब जगह तो -1. ये ओरली कर रहा हूँ लेकिन लिखना पड़ेगा ना यहाँ, ये इजी क्वेश्चन है. इफ आई टेक -1 उस सब जाएगा तो ये होगा 1. मतलब ये इजी क्वेश्चन है इसलिए वो आसान हो जाता है, इसलिए मैं ये लिया हुआ है तो वापस लेता हूँ, ये इजी दिखेगा. आई गो फॉर 2. अगर मैं 2 लेता हूं तो हो जाता है -2, 3 लेता हूं तो ये होता है -2. तो 0, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3. चलो तो इसको दिखाओ यहाँ ये कैसे आया. हाउ यू गॉट इट. x इफ x इज इक्वल टू 0 देन x प्लस y इक्वल टू 0. Therefore 0 plus y equal to 0. Therefore y equal to 0. If x is equal to 1, then x plus y equal to 0. Therefore 1 plus y equal to 0. Therefore y equal to -1. If x is equal to 2, then x plus y equal to 0. Therefore 2 plus y equal to 0. Therefore y equal to -2. ये देखो. और if x is equal to 3, then x plus y equal to 0. 3 plus y equal to 0. Therefore y equal to -3. ये आएगा आपके चारों पॉइंट्स. अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है ना, 2x minus y equal to 9. Therefore चलो इसको हमें इसको दो क्वेश्चन कर पाएंगे. ट्राई टू फाइंड टू सॉल्व 2 क्वेश्चन एट अ टाइम. x, y. मैंने कहा था इफ आई स्टार्ट विद 0 आई टेक 4 पॉइंट्स. ओके, तो 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. मैं 0 ले रहा हूं तो वो -9 आएगा. अरे बाप रे, -9 इज टू मच, नहीं लेना है. हमें 0 नहीं लेना है यहाँ, याद रखो. 9 है यहाँ तो ये नेगेटिव होना चाहिए. सो आई टेक -1, -2, -3, -4. आप लोग सर यहाँ तो 4 to 8 होगा लेकिन उस साइड जगह बताओ पॉजिटिव हो जाएगा. 9 हाँ बराबर है. 1 लेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, लेंगे तो वो नेगेटिव होगा. ओहो राइट, पॉजिटिव लेंगे तो वो नेगेटिव होगा. अब हमें माइनस होगा. राइट, सो देखो 4 हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकेंगे क्योंकि इफ आई टेक -1 हियर इट बिकम -2 और -2 उस साइड के बाद इट बिकम +11. नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इफ x इज इक्वल टू 1, या कंपल्सरी वी आर फोर्स टू टेक पॉजिटिव वैल्यूज. नाउ देन 2x minus y equal to 9. Therefore 2 into 1 minus y equal to 9. Therefore minus y equal to 9 minus 2. Therefore minus y equal to minus 7. Therefore y equal to 7. तो ये पॉजिटिव वैल्यू है. -7. ध्यान से देखो 2 सर जगह दिस पॉजिटिव 2 गोज देयर, नेगेटिव हो जाता है. 9 minus 2 is 7, पॉजिटिव 7 बरोबर. लेकिन माइनस वाई इक्वल टू +7, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 तो नेगेटिव हो जाएगा. नाउ इफ x इक्वल टू 2 देन 2x minus 1 equal to 9. 2 into 2 minus y equal to 9.
ये 4 माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू 5, बराबर ना। 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि वो 5 हो जाएगा माइनस वाई है, माइनस वाई इक्वल टू 5, सो वाई विल बी इक्वल टू नेगेटिव, सो ये माइनस 5 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 3 देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, therefore 2 into 3 minus y equal to 9, therefore minus y equal to 9 plus 6, 9 minus 6, 6 पॉजिटिव है उससे जाता है नेगेटिव हो जाता है, therefore minus y equal to 3, so y equal to minus 3. This is minus 3. Now we go to the last value. If x is equal to 4, then 2x minus y equal to 9. Please substitute 2 into 4 minus y equal to 9. So minus y equal to 9 minus 8. 4 to the 8, उस तरह गया तो 9. Okay, यहाँ लेते हैं. Therefore minus y equal to 1 positive. Therefore y equal to minus 1. चलो, सब वैल्यूज आ गए, इनको प्लॉट करो। प्लीज प्लॉट दिस। मैं यही देख रहा था कि कुछ हमें हिंट मिल रहा है। अरे हिंट मिल गया, तो प्लॉट कर रहा हो, आप कर रहे हो, लेकिन एक ध्यान दो, ये देखो दोनों इक्वेशंस में हमें लकीली हमने 3 लिया और वो परफेक्टली मैच हो गया। सो वी कैन राइट सोल्यूशन, दोनों में आ रहा है। सो दिस विल बी, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है, आपको ग्राफ करना है। तो ये कोइंसिडेंस हो गया। प्लीज प्लॉट अ ग्राफ एंड सी, और ये भी हिंट मिलेगा तुमको। हाँ सर, ये मिल गया अपने को, तो ये आपको अंदाजा आ गया कि प्लॉट करने के बाद यही इंटरसेक्ट होने वाला है। दिस विल बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज x, y। कितना है वो 3, माइनस। आई वाज थिंकिंग क्या रही है, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ दिख रहा है अपने को कॉमन। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको प्लॉट करो आप लोग। प्लॉट दिस। Plot this on a graph paper. नहीं तो सर व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, चलो हम भी व्हाइट अब नॉर्मल पेपर पे कर देते हैं, नहीं है ग्राफ पेपर करो प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें कोशिश करेंगे कि हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, लास्ट टाइम नहीं हो पाया, तो 4 and 5। फोर्थ क्वेश्चन है, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू
3। चलो करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 इज द फर्स्ट इक्वेशन। ना अब कुछ बोलेंगे सर मैं उसको प्लॉट करता, y इज इक्वल लिखता हूं, करना है करो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3x, सो y विल बी इक्वल टू, सब साइन बदल जाएंगी, -2 प्लस 3x, सो y विल बी इक्वल टू 3x माइनस 2। सब ये करते यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, तो यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं, सीधा मैं सजेस्ट करूंगा ये सब कुछ करो मत, ये सीधा ऐसे रखो, भी बाद में करते हैं। x, y, ओके। अभी जो करना है वो नीचे करो ना। पहले क्या कहते हैं, अभी इमेजिन करो मैं 0 ले लिया। इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो 3 इंटू 0 0, तो कोई मतलब नहीं। सो माइनस वाई इक्वल टू 2, सो y विल बी इक्वल टू -2। अगर मैं ओरली हो जाता है, देखो 0 -2। ऑफकोर्स बाद में हमें बताना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में आसान हो जाता है। ना टेक -1 यहाँ, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू, ये -1 लेता हूं। देखो नेगेटिव लेंगे ना तो उस साइड जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाने वाला है, तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन 5 तक है चलेगा। आई टेक -1, तो 3 1 3 इंटू -1 इज -3, -3 उस साइड जाएगा तो 2 + 3 हो जाएगा, वो होगा 5। -y इक्वल टू 5, सो y विल बी -5। तो ये अगर मैं -1 लेता हूं तो ये होता है मेरा -5। अभी आई एम नॉट गोइंग टू गेट, आई एम टेक नेगेटिव वैल्यू, गो पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, जितने पॉजिटिव वैल्यू हो सके ले लें। पहला 1 लेते हैं, सो 3 इंटू 1 3, उस साइड जाएगा तो 2 - 3, ओके, सो -1 हो जाएगा। और 2 लूंगा तो आई टेक 2 6 -4 हो जाएगा। सो नाउ देखते हैं हमारा बराबर है कि नहीं। इफ x is equal to 0, then 3x minus y equal to 2. Therefore 3 into 0 minus y equal to 2. Therefore minus y equal to 2. Therefore y equal to -2. देखो पहला वैल्यू राइट। If x is equal to -1, then 3x minus y equal to 2. 3 into -1 minus y equal to 2. Therefore -3 minus y equal to 2. Therefore minus y equal to 2 plus 3. Therefore minus y equal to 5. Y equal to -5. देखो आ गया -5. If x is equal to 1, then इक्वेशन क्या है, 3x minus y equal to 2. Therefore 3 into 1 minus y equal to 2. Therefore 3 minus y equal to 2. Minus y equal to 2 minus 3. Minus y equal to -1. Y equal to 1. देखो रॉन्ग हो गया है तो ये भी रॉन्ग हो गया होगा। ओके, नाउ इफ x is equal to 2, then 3x minus y equal to 2. Therefore 3 into 2 minus y equal to 2. Therefore 6 minus y equal to 2. Therefore minus equal to 2 minus 6. Minus y equal to -4. Therefore y equal to 4. Right. सब बराबर है, तो अभी लिखते थे हम लोग 0 - 2 minus y minus 5, 1, 1, 2, 4. अब नेक्स्ट लेते हैं 2x minus y equal to 3.
आई विल स्टार्ट विद अगेन 0. यहाँ 0 लूँगा, यहाँ 0 0 लूँगा तो 2 0 0, सो तो चला गया x माइनस वाई इक्वल टू 3. सो इफ आई टेक 0 दिस विल बी -3. बाद में हम वेरीफाई कर लेंगे इसको. अभी मैं डालता हूँ ये यहाँ -1 लिया तो यहाँ भी -1 डालता हूँ. हाँ, एक ट्राई करो, जो वैल्यूज यहाँ लेंगे हो सकता है तो यहाँ तो आपने को ना इसमें ही पॉइंट मिल जाएगा. अगर हर बार मिलेगा ऐसा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी ये मिल जाएगा. -2 सर जाएगा तो 5 -2 5 -2 ये 2 हो जाएगा. ये सॉरी -2 है ना. 2 इंटू -1 इज -2 -2 सर जाएगा तो +2. 3 + 2 5 -y इक्वल टू 5. सो y विल बी -5. पॉइंट्स मिल गए ना. दूसरा है 1. 2 1 जा यहाँ 1 लिया, सेम पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ. 2 1 जा 2, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. 3 - 2 ये होगा 1. दूसरा है 2 2 2 जा 4, उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा. तो 3 - 4 इज -1, तो ये हो जाएगा 1. ये -1. देखते हैं क्या होता है. शायद यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, ये और ये चेक करना अपने को ना. इफ x इज इक्वल टू 0 देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. सो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3. ये तो -y इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू -3. तो ओके, दिस इज राइट. ये बराबर है तो 0, -3 लिख दो. ये बराबर ही होगा क्योंकि ये मैच हो रहा है. इफ x इज इक्वल टू -1 देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. therefore 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल टू 3. सो -2 माइनस वाई इक्वल टू 3. 2 साइड लेके जाओ. -y इक्वल टू 3 + 2, तो -y इक्वल टू 5. सो y विल बी -5. तो ये दो, ये राइट. अब यहां दे चेक करना आप देखो. इफ x इज इक्वल टू 1 देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3. 2 माइनस वाई इक्वल टू 3. -y इक्वल टू 3 -2. -y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1. अरे वाह, दिस ऑल्सो इज करेक्ट. नेक्स्ट लेते हैं. इफ x इज इक्वल टू 2 देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3. 4 माइनस वाई इक्वल टू 3. -y इक्वल टू 3 -4. -y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1. अरे वाह, दिस ऑल्सो इज करेक्ट. तो अभी लिख दो सब पॉइंट्स. अब प्लॉट करो. प्लॉट करने के बाद और प्लॉट करने के पहले ही आपको मिल जाएगा. सी दीज आर द कॉमन कोऑर्डिनेट्स. तो ये है आपका सोल्यूशन, लेकिन प्लॉट करना है. प्लॉट करो और देखो. ओके is the solution of given quadratic equation. ये पूरा लिखो quadratic equation, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो. प्लॉट करो और देखो कि ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं. -1. हैबिट अच्छी रखो, शॉर्टकट मत मारो. शॉर्टकट सर ने किया, हम लोग नहीं करते, एग्जाम में भूल जाओगे प्लॉट करना. तो प्लॉट इमीडिएटली करो, प्रैक्टिस अच्छी रखो, तो एग्जाम में भी वो सीक्वेंस में याद आएगा और सीक्वेंस में आप लोग करोगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 5 1.2 प्रैक्टिस सेट. चलो करते हैं. टेबल ड्रॉ करो.
ये पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको, अंदर पेन से लिखना है, ये पेन से लिखना है। तो अब कोऑर्डिनेट लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो हमें x का कोऑर्डिनेट ऐसे लेना है, वी हैव टेक कोऑर्डिनेट ऑफ इन सच ए वे कि जब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, प्लस और माइनस जो भी होगा उसके बाद, जो इसके बाद प्लस और माइनस के बाद जो वैल्यू आएगी वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, क्योंकि ये y का जो कोएफिशिएंट है 4 है। सो दिस वैल्यू शुड बी डिविजिबल बाय 4, मतलब वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं अगर 1 लेता हूं, इफ आई टेक 1, तो ये क्या होगा, 3 1 जा 3, पॉजिटिव 3। पॉजिटिव 3 को उस साइड लेके जाते हैं, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, तो -3 हो जाएगा। -7 -3 कितना होगा, -10। -10 इज ए इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा ऊपर हो जाता है 10 है, वो 2 5 जा 10, 5/2 आता है। 5/2 को डिवाइड करोगे तो 2.5, तो 2.5 चलेगा ग्राफ पे, तो ये आएगा 2.5। चलो अभी नेक्स्ट चलेगा, तो हम लोग 1 लेते हैं। दूसरा हम लोग ट्राई करते हैं -1 से, ये शायद माइनस या प्लस 2.5 आना चाहिए उसको। ये यहाँ अगर -2.5 आता है तो यहाँ पॉजिटिव 2.5 आएगा, देखो कैसे होता है, 2.5 दोनों में आएगा। और दूसरा हम लोग, क्योंकि ये हम लोगों ने अगर हम लोग ये ऑड लिए तो हम लोग ऑड ही वैल्यू देते हैं। 2 लेंगे तो क्या होगा, ये 3 और 6 हो जाएगा। 6 पॉजिटिव उस साइड लेके जाते हैं ना, तो -6 होगा। -7 -6 -13, -13 बाय 4 करोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, और आप लोगों को कुछ आएगा तो 3.25 ऐसा आएगा। 2.25 प्लॉट करने को तकलीफ होती है, 0.5 चलेगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 चलता है। पॉइंट 2 डिजिट में आते हैं ना, 3.25, देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। वो राउंड अप करो, वो करो, टीचर एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, मार्क्स जा सकते हैं, आधा मार्क यहाँ वहाँ जा सकता है। तो हो सके तो देखो कि मल्टीपल हो 4 का। तो हम लोग यहाँ ऑड लेते हैं तो होता है, तो गो फॉर ऑड। 2 इज नॉट ऑड, तो 2 और -2 को भूल जाते हैं, क्योंकि वो 13 है, -3 आएगा, नहीं चाहिए। स्टार्ट विथ 3 करते हैं, तो मैं यहाँ 3 पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, 3 3 जा 9, पॉजिटिव 9। पॉजिटिव 9 को उस साइड लेके जाते हैं तो नेगेटिव होता है, -9। सो -7 -9 विल बी -16। -16 इज अ मल्टीपल ऑफ -4, सो -4 इंटू -4 1 जा -4 1 जा, और -16 का -4 इंटू 4 आता है, -16, सो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाता है, तो 4 आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट्स चलेंगे। इफ x इज इक्वल टू 1, तो मैंने क्या किया समझने को, मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन किया, थोड़ा समझने को ओरली किया कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वही वैल्यू लो, ताकि आगे जाके कैंसलेशन इरेजिंग वो नहीं हो। थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। इफ x इक्वल टू 1, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू करो, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। x की वैल्यू 1 है, -4y इक्वल टू -7, so 3 minus 4y equal to -7. So -4y equal to -7 minus 3. -4y equal to -10. Y equal to -10 upon -4. Minus cancel. 2 2s are 2 5s are. और ये 2 1s are 2.5. तो पॉजिटिव 2.5 आता है। अब आते हैं हम लोग, इफ x इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा, इक्वेशन है, देन इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, तो 3 इंटू -1 -4y इक्वल टू -7, -3 -4y इक्वल टू -7, -4y equal to -7 plus 3, -4y equal to -4,
for y. So y equal to 1. If x is equal to 3, then 3x minus 4y equal to minus 7. 3 into 3 minus 4y equal to minus 7. 9 minus 4y equal to minus 7. Minus 4y equal to minus 7 minus 9. Minus 4y equal to minus 16. Y equal to minus 16 upon minus 4. Minus minus गया, 4 1s are, 4 4s are. Y equal to 4 आता है. तो ये आंसर आ गया आपके 1, 2.5, minus 1, 1, 3, 4. नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं. ग्राफ 5x माइनस 2y इक्वल टू 0. प्लॉट करो, टेबल ड्रॉ करो. कॉलम 4 होनी चाहिए. पेंसिल से ड्रॉ करना है. अभी देखते हैं कौन सी वैल्यू ली जाए. देखो ये ऑड नंबर है तो 1 लेते हैं. 5 1s are. पहले -1 से करते हैं तो -5 इंटू -1 इज -5. -5 को उस साइड लेके जाते हैं, हो जाएगा +5. 5 डिवाइडेड बाय -2 होगा. आंसर -2.5 चलेगा. तो -1 और 1, अगर -1 से आपको आता है -2.5 तो 1 से होगा 2.5. तो -1 और 1 फिक्स हो गया आपका वैल्यू. -1 और 1 अपनी वैल्यू फिक्स हो गई. ये इवन नंबर देखो 2 के साथ y के साथ 2 है तो हमें इवन से ही मल्टीप्लाई करना है. सो ट्राई विथ 2. तो हमें 5 2s 10 आता है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -10 हो जाएगा. -10 को डिवाइड बाय -2 करो तो आंसर 5 आता है. चलेगा. तो अभी ये प्लॉट करो, ड्रॉ करो, सॉल्यूशन निकालो. इसका मतलब एक्चुअली एग्जामिनर को दिखाओ कि y के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं. हमें अभी मैनिपुलेट कर लिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता. हमें वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है पेपर पे. तो पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं. चलो. इफ x is equal to -1, then 5x minus 2y equal to 0. 5 into -1 minus 2y equal to 0. -5 minus 2y equal to 0. Side changes, sign changes. So -2y equal to -5 becomes +5. 0 plus 5. -2y equal to 5. So y क्या होगा, 5 upon -2. 2 1s are 2.5 2s are. तो माइनस भूलो मत, y will be -2.5. पहली वैल्यू आ गई अपनी -2.5. होगा -1 होगा -2.5. तो ये शायद 2.5 आएगा. देखो इफ x is equal to 1 होगा पॉजिटिव तो देन 5 into 1 minus 2y equal to 0. 5 1s are 5 minus 2y equal to 0. Minus 2y equal to 0 minus 5 because side changes, sign changes. Minus 2y equal to -5. y क्या होगा, -5 upon -2. y की वैल्यू होगी 2.5 पॉजिटिव. 2.5 मिल गया. 1, 2.5. अब आते हैं नेक्स्ट. इफ x equal to 2 then 5x minus 2y equal to 0. 5 into 2, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 5 into 2 minus 2y equal to 0. 10 minus 2y equal to 0. Minus 2y equal to, side changes, sign changes. 10 becomes -10. Minus 2y equal to -10. 0 minus 10 is -10. y क्या होगा, -10 upon -2. 2 1s are 2 5s are. So y will be माइनस चला गया. y is पॉजिटिव 5. अभी इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और मुझे बताओ क्या है. 2 मिनट देता हूं. क्या करना है आपको, पॉज करना है वीडियो को और जो वीडियो पे देख रहे हैं
और इसको सॉल्व करना है प्रॉपरली, प्लॉट करना है और मैच करना है आंसर से। ओके, आंसर मैं बोलता हूँ 1 मिनट में। ऐसे लिखते हैं, solution is x कॉमा y। x कॉमा y का सोल्यूशन कितना है आपको? इट इज 1 कॉमा 2.5। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x माइनस 3y। ये लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस x इक्वल टू 4। ये जो 3y माइनस x उसको अरेंज करो, ये माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 4, उसको जो दिया है ना उसको अरेंज करके लिखो। माइनस एक्स 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो उसको अरेंज करो माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू। अभी हमें इसको प्लॉट करना है, तो सॉल्यूशन टेबल बनाओ। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसका टेबल बनाओ, पेंसिल से ड्रॉ करो टेबल। 3 कॉलम्स चाहिए हमें, सॉरी 3 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स। ये x y x कॉमा y। वापस यहाँ भी थोड़ा मैनिपुलेशन हम लोग ओरली करते हैं, हर क्वेश्चन में आपको करना है। अगर ये x और y के साथ अगर कोई एफिशिएंट है तो करना पड़ेगा। चलो 2 पहले -1 से लेते हैं। देखो अभी प्रॉब्लम क्या होने वाला है, अगर हम लोग इवन नंबर लें तो, अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तो देखो क्या प्रॉब्लम आता है। मैं 2 1 जा 2 लूँ, -1 लूँ तो 2 इंटू -1 इज -2। -2 सर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये होगा 4 प्लस 2। 4 प्लस 2 इज 6 और 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, समझे? तो -1 चलेगा, 3 2 जा आएगा, -2 आंसर आएगा नीचे। अब यहाँ हम लोग 1 लेते हैं, 1 लेके देखते हैं अगर आपको समझ में आएगा। 1 लेता हूं तो ये 2 1 जा 2 आएगा। क्यों 1 लेना नहीं है, देखो अभी यू विल कम टू नो। 2 1 -1 चलेगा लेकिन +1 नहीं चलेगा। ये देखो क्या आएगा, 2 1 जा 2, तो पॉजिटिव 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा -2। सो 4 - 2 कितना होगा 2। 2 डिवाइड बाय हम लोग 3 करेंगे तो आंसर आपका 0.6666 आता है। 0.67 डेवलप करोगे तो प्लॉट करने को तकलीफ होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए और ये अपने को रिकरिंग आ रहा है 6666, तो अवॉइड करो ऐसे वैल्यूज को। तो हम लोग 1 पॉजिटिव नहीं लेंगे। -1 लेने के बाद होता है, अगर हम लोग 2 लेते हैं -2 तो वहां 8 हो जाएगा। -2 देखते देखते हैं क्या होता है। -2 आता हूं मैं तो होगा 2 इंटू -2 इज -4। -4 वहां जाता है तो होता है +8। +8 पॉजिटिव डालता हूं, 2 डालो यहाँ, इंस्टेड ऑफ -2 आई पुट +2। तो क्या होगा 2 2 4, 4 उस साइड जाएगा तो -4 - 4 0 चलेगा। 0 डिवाइड बाय 3 0 ओनली, तो ये चलेगा। सो आई स्टार्ट विथ, मैं 2 लेता हूँ, +2। अब और एक नंबर चाहिए हमें, तो
3 देखते हैं, 3 डालते हैं तो 3 to the 6 हो जाता है, 3 to the 6 को उस साइड ले जाते हैं, पॉजिटिव 3 लेते हैं तो 3 to the 6 उस साइड ले जाते हैं, -6 हो जाएगा, -6 + 2 इज -2, आपस वही प्रॉब्लम आपका आएगा 1 नहीं मेरे ख्याल से 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव चलते हैं, नेगेटिव रहते तो 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 3 इज अगेन 3.3333 आएगा, नहीं चलेगा। 4 लेते हैं, इफ आई टेक -4 चलेगा, -4 4 to the 8 हो जाएगा, 8 उस साइड जाता है तो -8 उस साइड जाता है +8 हो जाएगा, 8 + 4 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यहां हमें -4 लेना है, ऐसे मैनिपुलेट करना है इनको, समझो। अभी स्टार्ट करते हैं। इफ अभी जो हमने किया ओरली उसको वर्ड्स पे प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1 देन 2 into x minus 3y equal to 4. 2 into -1 minus 3y equal to 4. -2 minus 3y equal to 4. Minus 3y equal to side changes, sign changes +2. Therefore, minus y equal to, simply y equal to 6 upon -3. 3 1s are 3, 2s are minus sign, भूलो मत, y equal to -2. So -1, -2. If x equal to 2, then 2x minus 3y equal to 4. 2 into 2, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, minus 3y equal to 4. So 2 2s are 4 minus 3y equal to 4. Minus 3y equal to 4 minus 4. Side changes, sign changes. Minus 3y equal to 0. Therefore, y will be equal to 0. 0 upon -3. 0 upon anything is 0. So 0 upon -3 will be 0. 0 आएगा ये 2, 0. अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू। इफ x is equal to -4, then 2x minus 3y equal to 4. 2 into -4 minus 3y equal to 4. -8 minus 3y equal to 4. Minus 3y equal to 4 plus 8. Therefore, minus 3y equal to 12. Therefore, y क्या होगा? 12 upon -3. So, y will be 3 4s are -4. x -4 होगा तो y भी -4 होगा। -4 -4। अब ये नेक्स्ट ग्राफ जो है उस पे जाते हैं। -x + 3y equal to 4। वापस टेबल बनाओ। पेंसिल से हमें बनाना है टेबल। 3 रो 4 कॉलम। x y x घुमाओ। यहाँ भी थोड़ा उर्ली मैनिपुलेट करो। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए यहाँ प्लस माइनस करने के बाद, क्योंकि y का वैल्यू y के साथ कोएफिशिएंट y का 3 है। तो मैं पहले यहाँ -1 लेता हूँ, -1। देखो -1 लेता हूँ तो -1 हमारा रोज का नंबर है, रोज का नंबर -1। -1 इंटू माइनस x में लो -1 इंटू माइनस +1 होता है। +1 उस साइड लेके जाओ, माइनस होगा, साइड चेंजेस साइन चेंजेस। 4 - 1 कितना होता है? 3 और ये 3 डिवाइड 1 आएगा। यस गुड, ये होता है। दूसरा हम लोग करते हैं अभी, हम लोग अगर ये +1 हमने -1 लिया, +1 लोगे ना तो 5 आएगा। देखो इफ आई टेक +1 तो ये होगा -1 उस साइड तो +1 5/3। नहीं वो डेसिमल पॉइंट में बड़ा नंबर आएगा। तो -2 पे +2 पे जाते हैं, +2 लेते हैं।
पहले -2 देखते हैं, बाद में +2 लेते हैं। -2 लो तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 उससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 - 2 = 2, 2 भी नहीं चलेगा। सो -2 चलो, जस्ट ट्राई विद -2। -2 लेता हूँ मैं, तो -2 इंटू माइनस, ये -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। टू चलेगा शायद, लेते हैं 2 लेते हैं तो ये माइनस इंटू 2 -2 उससे जाता है तो पॉजिटिव होता है। 4 + 2 6, 6 का मल्टीपल ऑफ विल डू। -2 मतलब अभी हम लोग 3 से करें तो क्या होगा, either 1 आएगा या 7 आएगा, नहीं चलेगा। 4 लेते हैं तो भी नहीं, 5 लेते हैं, ओके। और हो सके तो पॉजिटिव 5 लो, 5। तो ये होगा -5 + 3y = 4। -5 को उस साइड लेके जाओ, बिकॉज 5 इंटू -1 इज -5, -5 उस साइड लेकर पॉजिटिव 5 हो जाएगा। 4 + 5 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 3 आएगा। चलो ये आगे वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। इफ x = -1, x की वैल्यूज मिले हमें देन, और हमको मैनिपुलेट करने के बाद पता चल रहा है कि हमारा y भी ऐसे ही आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। इफ x = 1 देन -x + 3y = 4। तो माइनस इंटू -1 + 3y = 4। सो 1 + 3y = 4। Therefore 3y = 4 - 1. So 3y = 3. Therefore y = 3/3. Therefore y = 1. y की वैल्यू 1 आ गई। तो -1 और 1 ये हमारे पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी नेक्स्ट आते हैं, इफ x = 2 देन देखो क्या आएगा, -x + 3y = 4। सो माइनस और x की वैल्यू 2 है, प्लस 3y = 4। सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू वहाँ, -2 इज -2 + 3y = 4। -2 को उस साइड लेके जाओ, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस। देयरफॉर 3y = 4 + 2। देयरफॉर 3y = 6। देयरफॉर y = 6/3 इज 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो ये भी x 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आती है। अभी हम लेते हैं x = 5। If x = 5 then -x + 3y = 4। So minus x की वैल्यू डालो, put the value of x plus 3y = 4। So ये होगा माइनस इंटू 5 इज -5 प्लस 3y = 4। माइनस उस साइड लेके जाओ, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, तो होगा 3y = 4, -5 का हो जाता है +5। सो ये होगा 3y = 4 + 5 9, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, y = 9 डिवाइड बाय 3 इज 3। तो ये वैल्यू होगी 3, 5, 3। अभी प्लॉट करो इनको, ये कोऑर्डिनेट्स को x एंड y एक्सिस पे। वीडियो पॉज करो और प्लॉट करो और देखो कितना आता है वैल्यू आंसर इसका। solution is x, y का सॉल्यूशन कितना आएगा देखो, इट विल बी 8, 4। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो अपना एक्स प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीटेड विद